Harviji. He's been kind enough to accept our invitation to speak to our students and teachers about this issue. Harviji is a स्पेशलिस्ट दो तरह से वो आए हैं. एक तो जर्नलिस्ट जिन्होंने has taken deeper interest in the issues of agricultural affairs, and also as an expertise he has been dealing with the issue for a long time. Currently the agitation provides us a context to discuss the agricultural reforms. Today, the agricultural reforms and the farmers' protest has split the country sharply. One section saying the reform laws are absolutely in the interest of the farmers. Other set of people are saying this goes against the interest of the farmers. So the split is not only among the individuals, it is among the experts, among the economists, among the policymakers. So where does the truth lie? Is it that, as the government is saying, it's only a concern of a handful of farmers, handful in the sense farmers from 2.5 states, or is it actually a national concern which is being articulated by the farmers of Punjab, Haryana and Western Pradesh? So that's a question which we all have been debating among ourselves in our own ways, but I think it will be extremely insightful if we listen to a perspective from Harviji. Today I just read his piece from Samli, where he had gone to see the Mahapanchayat and make a comment on this, which certainly shows his depth of understanding and his critical perspective over a span of several decades. And I'm sure all of our students and teachers benefit immensely from this discussion. Welcome, Harviji. Thank you, Mohanteji, and Jagran Institute of Mass Communication and Management to provide me this opportunity to interact your faculty and students. It's a very important thing for me. So I'll speak in Hindi. Okay, and maybe it will be bilingual wherever I feel can use words of English and sentences. So as you already mentioned, really मेरा मानना है कि लगभग 3 दशक जो मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है जिसमें एग्रीकल्चर हमेशा एक फोकस रहा है और I comes from a farming family. I have seen since my early childhood what is happening to agriculture and what kind of journey Indian agriculture has till date in the last 5 decades roughly I can say. So ये सही कहा आपने कि एक्चुअली ये बहुत ही मैं ये कहूँगा कि ये हिस्टोरिक टाइम है जो हम देख रहे हैं कि एक इतिहास बन रहा है देश के एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है 3 कानून की मैं बात करूं देखिए एक तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट रिफॉर्म्स आई ऑलवेज सपोर्टेड लेकिन वो कंसेंसस के साथ में और जहां रेलिवेंट है वहां के साथ हम अगर बात शुरू करें जो अभी जो मसला है अभी जो देश भर में है और अब ये देश के दायरे से बाहर चला गया है दुनिया में भी इसके ऊपर चर्चाएं हो रही है बिकॉज हम सब लोग मीडिया से हैं तो मीडिया का जो कवरेज है पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके का जिसका जो पर्सपेक्टिव दिख रहा है बट नाउ इट इज ए ग्लोबल सब्जेक्ट इट्स नॉट कन्फाइंड टू जस्ट इंडिया और सम स्टेट्स और टू दिल्ली ये भी एक हमें उस संदर्भ को भी देखना चाहिए देखिए 3 कानून जो है उसको पहले मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा देन आई विल गो इनटू जो पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन फैसिलिटेशन वो एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं और नॉट ओनली एग्रीकल्चर फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है अदर देन क्रॉप ऑल्सो डेयरी हो आपका फिशरीज हो या जिस तरीके के भी उत्पादों का हो इवन एनिमल ट्रेड वो उसमें क्या है कि उसके ट्रेड को लिबरलाइज करने की उसमें बात कही गई मोटा मोटा ये है कि अभी जो
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है उनके दायरे में ये सीमित होता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत जिन लोगों ने लाइसेंस लिया है मंडियों में, और उसमें जिस तरह से ये गवर्न होता है ट्रेड, उससे ये मुक्त हो जाएगा। और दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया है, ट्रेड एरिया और एपीएमसी एरिया। एपीएमसी एक पुराना कानून है, 60s का है। पंजाब में बहुत पहले था, 1939 में, जब सर छोटूराम यूनियनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, जब उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस द एक्ट इन पंजाब। उसके बाद 60s में देश के अलग अलग हिस्सों में ये कानून आया, कुछ जगह नहीं भी है, जैसे केरल में जो है। तो ये उसके तहत जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है, वो ट्रेड करती है एग्रीकल्चर, वहाँ उनकी देखरेख में होता है, वहाँ लाइसेंस होता है, और उसमें जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन करना होता है। और राज्य सरकारें अपने तरीके से उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर सेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है या आरटीआई कमीशन है, वो सारे उसमें जो इंसिडेंटल जो उसकी कॉस्ट होती है उसके बाद वापस के बाद वो सब है। सरकार ने कहा कि हम इसके बाहर करते हैं, एक अल्टरनेट मॉडल उपलब्ध कराते हैं और उसको ट्रेड एरिया, बिकॉज इसमें पूरे एक्ट में ट्रेड शब्द का इस्तेमाल, ट्रेड एंड कॉमर्स का है। तो एक तो हमें समझना चाहिए कि मार्केटिंग एंड ट्रेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। मार्केटिंग चूंकि स्टेट का सब्जेक्ट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एंट्रीज हैं उसमें दैट इज क्लियरली ए स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर कैन नॉट इंटरवीन टू दैट। बट जो ट्रेड है, ट्रेड सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू इनैक्ट ए लॉ फॉर दैट। दूसरा जो कानून है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट, उनका फैसिलिटेशन एंड प्राइसिंग, बेसिकली दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट इन स्मॉल टर्म्स अगर हम कहें, उसका एक लंबा सा नाम है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है कि अगर कोई लाइसेंसी फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करता है, इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत, वो आपस में एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे और जो कंडीशन उसके लेड है उसमें वो लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं और आपस में एक समझौता करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, ये सब चीजें हैं। तीसरा जो है, जो पहले से 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें संशोधन किया गया और उसके लिए ऑर्डिनेंस ला करके उस एक्ट को अमेंड किया गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पहले बड़ा सख्त होता था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सख्तियां थी, लेकिन बहुत लिबरल हो गया था उसमें। मतलब आप ये मानो कि कुछ जो फूड प्रोडक्ट्स को छोड़ दे, पहले उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी होता था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी होता था, और मैं जब देखता हूँ कि 90s में उसमें बहुत तब्दीलियां आई, बहुत सारा उससे बाहर किया गया, खासतौर से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बाहर किया गया। अभी इसमें प्रोविजन कर दिया कि आपका कोई भी उसका मूवमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरस्टेट मूवमेंट, कोई पाबंदी नहीं होगी, स्टोरेज पे भी नहीं होगी। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज के 50% एंड 100% प्राइस इंक्रीज जब होगा उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, या किसी आपदा की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, अदरवाइज इट विल बी फ्री। ये 3 कानून है जो जून के पहले हफ्ते में, मेरे ख्याल से 5 जून को सरकार ने अध्यादेश जारी किए इन कानूनों को लाने के लिए। और उसके बाद इसको जब पार्लियामेंट का सेशन आया मॉनसून का, तो उसमें इसका बिल ला करके उसको एक्ट में कन्वर्ट कर लिया गया। हालांकि रूल्स बनने लगे थे पहले जो है, और अब ये एक तरह से लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया हुआ है अभी, तो दोनों पहलू हैं इसमें। हालांकि कुछ राज्यों ने लागू करना शुरू कर दिया, तो ये तो वस्तु स्थिति इनको लेकर के है। कुछ चीजें हैं इन कानूनों में कि मेरा जो मानना है कि एग्रीकल्चर में आपको चेंजेस करना चाहिए। और जो एपीएमसी का जो कानून है उसमें अर्ली 2000 से, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तभी से उसमें एक मॉडल एक्ट बनाया गया था और राज्यों को कहा गया था कि इसको आप लिबरलाइज कीजिए, इसको बदलिए, इसमें से फ्रूट एंड वेजिटेबल बाहर कर दीजिए, इसमें लाइसेंस को लिबरल कीजिए, तो वगैरह काफी सारी चीजें उसमें थी। और उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने भी वैसे ही मॉडल एक्ट भेजा और उसमें बहुत सारा, करीब मेरा मानना है कि करीब 20 स्टेट ने उसमें अपने तरीके से कुछ चेंजेस किए। ऐसा नहीं है उसमें बदलाव नहीं हुए, चेंजेस हुए। और एक और पक्ष है कि ये जब कानून आए हैं
उसके करीब 15 दिन पहले भी कुछ राज्यों ने तब्दीलियां की थी इसमें, पर्टिकुलरली गुजरात, कर्नाटका जो है और मध्य प्रदेश, ये एक है। फिर ये कानून आ गए हैं, उसमें जो चीज है इसमें एक्चुअली देखिए, जो सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट था, इसमें प्राइसिंग को लेकर के बहुत कम बात की गई है कानून में, जो किसानों की नाराजगी का जो मैं मूल मुद्दा मानता हूँ। अभी तक मेरा मानना है कि हम प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जाएं या हम करंट की बात करें, किसान के लिए जो प्राइसिंग है, जो केंद्रीय मुद्दा है वही रहा। उसका हमेशा कहना रहा है कि हमें दाम ठीक नहीं मिलता। सरकारों ने एमएसपी की व्यवस्था की, वो ट्राई 3 स्तरीय व्यवस्था थी कि एक तो नई टेक्नोलॉजी ला करके फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटीज जो उपलब्ध कराई गई, जिसमें सीमिट का बड़ा योगदान था, जो मैक्सिको में इंस्टीट्यूट है और कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट का था, जिसमें हमें गेहूं की ऐसी वैरायटी और दान की उसके बाद आई जिसमें हाई यील्डिंग हुई। क्योंकि हम लोग 50 मिलियन टन भी पैदा नहीं करते थे पहले, अगर मैं देखूं इंडिपेंडेंस के वक्त में, और हमारा जो रिक्वायरमेंट था फूड ग्रेन का, उसको हम पूरा नहीं कर पाते थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, क्राइसिस थी। लेकिन अच्छी वैरायटी, सीड, फर्टिलाइजर और उसके बाद जो है उसको खरीदने की व्यवस्था, उसका एमएसपी का सिस्टम जो 60s में, 65 66 में शुरू हुआ, और लोगों तक सस्ता कम दाम का जो भोजन मिले उसके लिए पीडीएस का सिस्टम किया गया। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए जो है, इंटरलिंक्ड है, ये किया गया। तो एक और मैं आपको बताऊं कि मार्केटिंग हमेशा एक इशू रहा है फार्मर्स के लिए, और लोग अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो इवन बिफोर 60 एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक नोट दिया था उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आई थिंक सब जैन वाज देयर, तो कि आप जो है ये कीजिए कि मार्केट जो है फार्मर को, एक तो आप प्राइस एश्योर कीजिए, एंड मार्केट शुड बी अवेलेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ ए ब्लॉक कार्ट, मतलब उनका कहना जितना नजदीक ले जा सके वहां पे आपको करना चाहिए। खैर वो उसके बाद आगे आया, और ये अगर आप देखेंगे हमारे देश में जो विरोध जब भी हुआ है, आ, किसान आंदोलन हुए हों ज्यादातर, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वो प्राइसिंग को लेकर के ज्यादा हुए, वो शरद जोशी ने किया हो या मैन सिंह टिकैत ने किया हो, दूध को लेकर के हो, गुजरात का खेड़ा आंदोलन तो दूध को लेकर के ही था। तो अलग अलग हिस्सों में ये स्थिति रही है। तो अब सवाल था कि एमएसपी को लेकर के सवाल उठते रहे, बीच में फार्मर्स कमीशन बने, एमएस स्वामीनाथन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया कि जो कॉस्ट है C2+ 50% दीजिएगा, और उन्होंने और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन किए थे। अब सरकार ने भी पहले, जब ये 2014 का इलेक्शन कैंपेन में कहा गया कि हम देंगे, लेकिन बाद में वो प्रैक्टिकली उन्होंने माना कि पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल आया कि जो प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है उसका जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो मिलता है पंजाब में 100%, हरियाणा में 95 to 100%, यूपी में थोड़ा उससे कम, वेस्टर्न यूपी में थोड़ा ज्यादा, लेकिन बाकी हिस्सों में उससे कम। लेकिन और कई राज्य अच्छे हैं, जैसे तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रोक्यूरमेंट होता है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा होता है, छत्तीसगढ़ में धान का बहुत अच्छा प्रोक्यूरमेंट होता है, उड़ीसा इज इम्प्रूविंग वेरी वेल, और आंध्र प्रदेश में। तो एक तो ये है। अब ये जब कानून आता है उसमें एक डर लोगों के बीच में आया कि तीनों कानूनों में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं कही, मतलब कोई कैटेगरिकली एक एश्योरेंस नहीं है कि कोई बेंचमार्क होगा वो आपको मिलेगा। आप एपीएमसी में बेचें, आप नॉन एपीएमसी में बेचें, आप किसी ट्रेडर या कॉर्पोरेट या कोऑपरेटिव के साथ एग्रीमेंट करें, कुछ भी करें, तो आपको ये दाम मिलेगा, उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। और यहाँ से जो एक जो फार्मर्स के अंदर फियर जो आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब प्राइवेट ट्रेड करेगा और उसमें एक हमारा जो ये खरीद की व्यवस्था है ये खत्म हो जाएगी, और हमें जो अभी एमएसपी मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो एक प्रोस्पेरिटी कहें या एक रीजनेबल जो रिटर्न उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे मिलता है, वो उसको लेकर के वो फ्यूचर को लेके चिंतित जो हुए, उसमें एक अंदर से धीरे धीरे ये शुरू हुआ। और इसके अलावा जो दूसरी बात थी कि
जो एक मैं ये मानता हूँ कि शायद जल्दबाजी में हुआ, जो ट्रेड एरिया में और एपीएमसी के बीच में एक अनलेवल फील्ड क्रिएट किया गया, क्योंकि ट्रेड एरिया में किसी भी तरीके का टैक्स या कोई सेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। तो मंडी में आपका 2.5% से लेके 6.5 7.5% तक का अलग-अलग राज्यों में प्रोविजन है। कहीं आरती कमीशन 2.5% है, फिर रूरल सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है। तो उस तरीके से जैसे पंजाब में 7.5 या 8% तक जाता है, हरियाणा में उससे 1% कम है, मध्य प्रदेश में और कम है। तो ये हुआ कि यहाँ पर जो बाहर खरीदेगा, उसको ये पर क्विंटल 200 रुपए का, 300 रुपए का कॉस्ट कम आएगा और वो अभी जो है एमएसपी से थोड़ा बढ़ा करके देगा, 50 रुपया ज़्यादा दे, 100 रुपए ज़्यादा दे, क्योंकि उसकी नेट कॉस्ट जो है उसकी फिर भी कम आएगी और जो ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है एपीएमसी का, वहाँ पर ट्रेड कम हो जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर जाएगा तो फिर कल को जब सिर्फ प्राइवेट ट्रेड रह जाएगा, तो प्राइवेट ट्रेड हमें एक्सप्लॉइट करेगा। दिस इज द फियर जो किसानों के बीच में गया, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के मेरा मानना है कोई उस तरीके का बहुत ज्यादा विरोध शुरू में नहीं था, क्योंकि फार्मर भी चाहते थे लिबरलाइज हो। लेकिन उन्होंने जब क्या हुआ कि जब एक नाराजगी बनी तो उसके साथ उसको जोड़ लिया और उसमें भी एक इस तरीके का उन्होंने एक कनेक्ट बना लिया कि बिग कॉर्पोरेट पहले खरीदेंगे, फिर महंगा बेचेंगे, जब हमारी फसल आएगी वो उसको सस्ता कर देंगे क्योंकि उनके पास स्टॉक्स होंगे और ये हमें उस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे। थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, उसमें भी प्राइस का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। ये बात क्लियर है उसमें कि कोई भी जमीन कोई नहीं ले सकता, एक सर्टेन टाइम के ऊपर उनको छोड़ना पड़ेगा, कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, उस पर लोन नहीं ले सकता, ये चीजें हैं। बट अभी तक का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस हमारे देश में है, वो बहुत हेल्दी नहीं है। उसमें मैं जिक्र करूंगा उसका कुछ बाद में, एक लाइव एग्जांपल जब हम उसमें बात करेंगे। तो क्योंकि असली चीज हुई है डर और ट्रस्ट डेफिसिट। शुरू में सरकार का लगातार रुख रहा कि हम आपको समझाएंगे, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तमाम हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे और उनका था कि ये जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने शुरू किया, ये एग्रीकल्चर का 1991 मूवमेंट है। दूसरी बात कही गई कि हमेशा जो सख्त फैसले होते हैं, जो बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, वो क्राइसिस में होते हैं। तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, कुछ दिन का हमारे पास फॉरेक्स था, लगता था इकोनॉमी कहाँ जाएगी। आप सब लोगों ने भी देखा रुपये कितना डेप्रिशिएट हुआ था। तमाम सारे उस तरह के फैसले हुए थे 91 में। एंड नाउ वी सी के उस लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई, हम ओपन अप हो गए, हमारे यहाँ भारी इन्वेस्टमेंट आया और अलग अलग नए सेक्टर्स डेवलप हुए, सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई, ये सब। बट यहाँ था कि क्राइसिस अभी भी थी, वो क्राइसिस एक पेंडेमिक था जो ग्लोबल क्राइसिस थी। उसमें शायद कुछ ये एक धारणा बनी कि इस क्राइसिस में कुछ बड़ा रिफॉर्म करते हैं। यहाँ एक मेरा पॉइंट है कि जब हमारी इकोनॉमी इस बार श्रिंक हो रही है 7.7%, उस वक्त एग्रीकल्चर में 3.4% का ग्रोथ है। सो उस तरह से मैं कहूँ एग्रीकल्चर वाज नॉट इन क्राइसिस। रूरल इंडिया वाज नॉट इन क्राइसिस ड्यू टू दिस पैंडेमिक। रूरल एरिया में क्राइसिस था, तो जो अर्बन से जो लोग वापस गांव में गए थे, जहां पर जो माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं थे और उनकी जो रूट्स थी या उनको लगता था वहां उनको कुछ मदद मिल सकती है, वहां वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वो क्राइसिस तो था। लेकिन अगर आप देखें जो रूरल डिमांड है उसमें कोई कमी नहीं आई। आप इसका संकेत होता है कि जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड की सेल है, उसमें ग्रोथ है 20% से 40% की। ऑटो का जो डिमांड है वो खत्म हो गया था, लेकिन ट्रैक्टर्स में ग्रोथ थी और बाकी जो डिमांड निकली और चीजों की वो भी रूरल से निकली। उसका रीजन ये था एग्रीकल्चर इज ए नेचुरल प्रोसेस। और पैंडेमिक में जब तमाम सारे कंडीशंस लगाई है लॉकडाउन की, सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत सारे उसमें छूट दिया था कि आपके जो मेंटेनेंस शॉप्स हैं ट्रैक्टर की, वो सब खुल सकती हैं, किसान खेतों में जा सकता है, प्रोक्यूरमेंट के लिए आ सकता है और सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब उनके मतलब की चीजें वो एक्टिव रहेंगी, हार्वेस्टिंग मशीन मूव कर सकती हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था और उसको अच्छे से मैनेज किया सेंटर एज वेल एज स्टेट जो है।
और हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। तो एक तो ये मैं देख रहा था। तो ये तो रहा कि जो कानून है, एक चीज़ इसमें और जो एक तो जो मैंने बताया कि प्राइसिंग को लेकर के जो उसमें साइलेंस बरता गया। दूसरा था जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म जो है उसमें, वो उसमें फ्लॉ था। उसमें कहा कि आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, जो है। और आपको अगर कोई इश्यू है तो आपको कंसिलिएटरी प्रोसेस के लिए एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम एक कमेटी बनाएँगे, उसमें नहीं हल होगा तो उसके ऊपर बनेगा, फिर डीएम बनाएँगे, स्टेट पे जाएगा एंड इट विल कम अप टू मैक्सिमम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है, वहाँ पे ये होगा। तो उसको भी लोगों ने लगा कि देखिए, हमारे देश में हम सब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कितने व्यस्त होते हैं, उन तक पहुँचना किसी कॉमन मैन या फार्मर के लिए लगभग असंभव सा है। तो उनको लगा कि ये तो कॉर्पोरेट को फेवर करने के लिए है। दूसरे इसके अलावा ये भी हुआ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होंगे, उसमें ये कहा गया कि वो कुछ भी फैसला लेंगे, उनके खिलाफ भी आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो उनको एक इस तरीके का प्रोटेक्शन दिया गया, जो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई गलत काम करने पर किसी को भी नहीं है, जो है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या हुआ फिर जब इनकी फाइन प्रिंट सामने आने लगे, बहुत चर्चाएँ हुई, बहुत डिस्कशन हुए और उसके ऊपर रिपोर्टिंग होने लगी, तो ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो गया एंड देन आपका जो एजिटेशन वहाँ से पंजाब से शुरू हुआ। अब पहले क्योंकि कोविड के चलते रेस्ट्रिक्शंस थी, उसके बावजूद वहाँ पर फिर जब इसका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, फिर आपका हरियाणा में हुआ, फिर आपका यूपी में हुआ, शुरू में कम था। तो नाउ ये एक बड़ा मसला इसमें आया। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ आपको बिकॉज़ काफ़ी सारे हम लोग यूपी को जानते हैं। हमारे यहाँ सबसे सक्सेसफुल और सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुगरकेन में है। शुगरकेन में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। उसमें 3 पार्टियाँ हैं। किसानों की तरफ से उनका केन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके वो मेंबर हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट है और प्राइवेट शुगर मिल्स हैं। उनके बीच में एक प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट होता है कि इस ये दाम रहेगा इस साल का और उसमें एक कोटा तय होता है फार्मर का। आप इस शुगर मिल को इस पूरे क्रशिंग सीजन में इतना गन्ना सप्लाई करेंगे और जब शुगर मिल आपको कहेगी, तब आपको वो सप्लाई करना है। बट एज़ पर शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर जो कानून है, उसमें ये है कि आपको 14 दिन के अंदर उसका भुगतान करना है और अगर 14 दिन भुगतान नहीं करेंगे तो लैंड रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आप उसको ब्याज देंगे किसान को। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली क्या स्थिति है कि केन एरियर्स बहुत होते हैं, दाम भी फ्रीज़ हैं कई साल से। इस संदर्भ में ये भी देखा जाएगा कि जो यूपी की प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसने 3 साल दाम फ्रीज़ किया था। अखिलेश यादव की जो गवर्नमेंट थी, 2 साल बढ़ाया था 5 साल में। और जो मौजूदा सरकार है, उसने जब चार्ज लिया जिस साल, जो पहला सीज़न है, उसमें दाम ₹10 बढ़ा है। उसके बाद वो अभी तक फ्रीज़ है और करंट सीज़न में कोई दाम अनाउंस अभी तक नहीं हुआ, जबकि आज हम 10 फरवरी को बात कर रहे हैं। अक्टूबर में टेक्निकली सीज़न शुरू होता है, नवंबर में शुगर मिल चल गई हैं। और उनके एरिया रफली 14-15,000 करोड़ है। पिछले साल के पेमेंट्स जो लोगों ने जो मई-जून में जो सप्लाई किया मई तक अप्रैल-मई तक, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी 20-30% पेमेंट्स उनके बचे हुए हैं। सो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह से यूपी के फार्मर ने कहा हम तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में हैं। शुगर मिल बताती है कि आपको सीड इस बार इस्तेमाल करना है, वो बताते हैं कब आपको सप्लाई करना है, सरकार दाम तय करती है, हम उनको देते हैं, फिर पेमेंट में भी हमारा कोई ये नहीं है कि कब हमें मिलेगा। सो आई थिंक ये जो एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब बेसिकली जिससे वो जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो खामियाँ थी, उन्होंने कहा इसमें तो बहुत खामियाँ, हम नहीं जाएँगे। दूसरा था कि 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट को रिपील कर दिया था और वहाँ पर प्रोक्यूरमेंट का लेवल बहुत कम है। आपको ताज्जुब होगा कि मैं जब डाटा देख रहा था इस बार गेहूँ का जो प्रोक्यूरमेंट है वहाँ पे, वो 5,000 या 15,000 टन था। जबकि चंडीगढ़ में उससे 3 गुना था। चंडीगढ़ एज़ ए सिटी जो है, वहाँ पे जो काउंट हुआ है और वहाँ पर फार्मर्स को दाम नहीं मिला। तो ये जो किसान थे, इनको लोग समझा भी पाए और लाइव एग्ज़ाम्पल से भी बता पाए कि जब 2006 में वहाँ पर ये इस तरीके का व्यवस्था आई, तो वहाँ ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आया और वहाँ के फार्मर्स को जो है दाम ठीक से नहीं मिला और वहाँ के जो एपीएमसी मार्केट है, वो कोलैप्स कर गए। उनकी जो तस्वीरें आती है, खंडहर-नुमा बन गए हैं वो सब। तो ये स्थिति है। तो अब आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनके पास उदाहरण है।
उनके पास नॉन एपीएमसी वाले राज्य का उदाहरण है। और एसेंशियल कमोडिटीज वाला मैं अभी भी कहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी उधर नहीं होगी, मेरा जो मानना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों से बात की है, जो लोग एजिटेट कर रहे हैं, तो तमाम सारा सरकार में भी एक धारणा बनी है, जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ। मेरा जो इंटरेक्शन डिसीजन मेकर्स और जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए, उनको भी कहीं ना कहीं ये बात आई कि शायद इस पर चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा होता, और कुछ कदम ऐसे हैं जो कि जिनसे बचा जा सकता है। हालाँकि एक उम्मीद थी मुझे कि जब ऑर्डिनेंस आने के बाद जब कानून आ रहे थे, तो उसमें इस जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, बहुत सारे संगठनों से बात हुई। जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा है, भारतीय आपका जो आरएसएस का किसान संघ है, या और दूसरे लोग हैं, पुराने जो फूड एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज़ रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, सीएसी लोग रहे हैं, उन सब का था कि जो कुछ कमियाँ हैं शायद वो जब हाउस में जाएगा ये बिल, वहाँ कुछ अमेंडमेंट होंगे और फिर जो लोगों की नाराज़गी है वो कम हो जाएगी। लेकिन वो एज़ इट इज़ पारित हो गए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जो पारित हुए उसको लेकर के भी लोगों में एक अलग तरीके का उसमें भरोसा थोड़ा कम हुआ। ये करके अब आंदोलन खड़ा हो जाता है। अब आंदोलन देखिए बड़ा हो गया है, चल रहा है अभी भी, और अ, बीच में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के इतिहास में अ, अब इसको 75 दिन से ज़्यादा हो गए, इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के जो है और इतना ज़्यादा कि उसमें लोगों का जुड़ना, ये पहला आंदोलन उस तरीके का चल रहा है। सरकार से बातचीत हुई, 10 दौर की बातचीत हुई, कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार ने भी बाद में अपना एक तरीके से कंसिलिएटरी मूड दिखाया कि पहले कहा आप क्लोज़ बाय क्लोज़ इसमें आप संशोधन करवा लीजिए। फिर उन्होंने कहा हम इसको स्थगित कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन दिया और एक एक्सपर्ट कमेटी 4 मेंबर की बनाई, जिसमें से 1 मेंबर ने इस्तीफा दिया, 3 मेंबर्स अभी फार्मर्स के साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। तो एक तो ये है कि दोनों तरफ रिजिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो फार्मर्स ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो 100% उसमें है। उनको भी कहीं न कहीं बीच का रास्ता सोचना चाहिए था, और क्योंकि इतना लंबा चलना जिसमें 150 से ज़्यादा जो आंदोलनकारी उनका डेथ भी हो गई। अनफॉर्च्यूनेटली डेथ हुई, लेकिन उसमें एक ही कन्फ्रंटेशन में कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो किसी का बीमारी से, किसी का ठंड से, जो रीज़न रहे हो। तो ये एक है उसमें। तो अब सवाल है कि रास्ता तो निकालना पड़ेगा सरकार जो है इसमें। और ये भी बात है कि अगर एक फ्रेश शुरुआत की जाए, आप इनको या तो स्थगन में रख दें और नए सिरे से तैयारी करें। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कभी भी जो कानून बने हैं, ख़ास तौर से जब आप देश की इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले कानून बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी विचार-विमर्श की ज़रूरत है। और कभी अक्सर ये रहता हुआ कि जब कोई कानून बनाना था बड़ा, तो उसका मसौदा पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, उसपे पब्लिक के कमेंट आते हैं, फिर आगे बढ़ती है सरकार, और फिर कई बार पार्लियामेंट में आपका भी अनुभव है कि पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो सेलेक्ट कमेटी को भी जाता है, वहाँ से रिकमेंडेशन आती है और उनको अकोमोडेट करके सबको साथ लेकर के आगे चलते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया की इसमें कमी रही है, और उसमें क्या होता है कि कई चीज़ें अगर आप कहते हैं कि अच्छी हैं, फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा उसमें सीक्रेसी बरतें, तो दूसरे को शक होने लगता है। मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें कई सारा जो भय है वो अनफाउंडेड है, उसका कोई बहुत आधार नहीं है। लेकिन क्या है कि जब एक ये हो जाता है, फिर शायद एक और पक्ष है इसमें कि जो किसान हाशिए पर था, उसको लगता है कि मैं एक असर्ट कर रहा हूँ, वो आकर के खड़ा हो गया है। तो ये पहलू हैं। अ, हमें ये देखिए करना है कि हमें डेफ़िनिटली रिफ़ॉर्म करना चाहिए। एपीएमसी कानून में बहुत ख़ामियाँ हैं, उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए। जो सिंगल लाइसेंसेस पर स्टेट का सरकार ने अभी जो आपका ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लॉन्च किया कुछ साल पहले। उसके लिए लाइसेंसेस की व्यवस्था की गई कि सिंगल लाइसेंस से आप पूरे राज्य में खरीद सकें। हमें नेशनल लाइसेंस का प्रोसेस अपनाना चाहिए कि ज़्यादा खरीदार आएँ। क्वालिटी को लेकर के कंसर्न है अभी भी। ई-नैम के लिए लेबोरेटरी जगह-जगह बनाई गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फंड भी दिया स्टेट्स को, आप ये बनाइए वहाँ पर। और एक और है कि अभी क्या है कि ज़्यादा मसला सेंट्रलाइज़ हो गया है
जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं उनको लेकर के। एग्रीकल्चर इज़ नॉट जस्ट क्रॉप। एग्रीकल्चर जो है उसमें आपका जो दूसरे उसके प्रोड्यूस हैं, वो एनिमल प्रोड्यूस खास तौर से इसमें डेयरी है, फिशरीज़ है, बी कीपिंग है और दूसरी चीज़ें हैं। उसमें भी जो है उसको उस तरफ भी देखना चाहिए और अभी तो देखिए हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कहीं इसके तहत नहीं आते हमारे जो अ, इसमें जो एमएसपी सिस्टम के तहत। उसमें उनका जो वैल्यू है, वो हमारे फूड ग्रेन के वैल्यू को क्रॉस कर गया है और उसका जो प्रोडक्शन है साइज़ में, वो भी क्रॉस कर गया है। मिल्क का वैल्यू फूड ग्रेन को क्रॉस कर गया है। तो फार्मर इज़ अर्निंग मनी फ्रॉम अदर रेवेन्यू स्ट्रीम आल्सो। ऐसा नहीं है सिर्फ क्रॉप से आता है और जो 23 क्रॉप्स हैं, जिनके लिए एमएसपी तय होता है, वो एमएसपी के लिए भी अगर आप देखेंगे कि फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट होता है, व्हीट एंड राइस का। इसके अलावा आप देखेंगे थोड़ा पल्सेस का हुआ है एंड यहाँ मैं बोलूँगा कि पल्सेस का जो एक उदाहरण है, वो एक तरीके का बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है वो। मैं उसपे 1 मिनट लूँगा अलग से और कॉटन का ठीक होता है। बाकी प्रोड्यूस में आप देखें कि ना के बराबर प्रोक्योरमेंट होता है। वो सरकार अनाउंस कर बट दैट इज़ अ बेंचमार्क प्राइस। लोग मानते हैं मुझे अगर इतना दाम मिल गया, तो मुझे ठीक दाम मिल गया, इसके नीचे मिला तो वो कहता है मुझे नुकसान है। फिर जैसे मैं आपको बताया पल्सेस का कि एक तो हमारा एक चैलेंज ये भी है कि जो व्हीट राइस का जो साइकिल है उसको तोड़ना एक चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उससे हमें बाहर जाना पड़ेगा और सब एक्सपर्ट्स उस पे बात कर रहे हैं। बट हमें फार्मर को एक ऐसा सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो पैरिटी जहाँ उसको मिले कि यहाँ आप जो कमाते हैं या तो उतना या उससे बेहतर आप दूसरी चीज़ से कमाएँगे। तो वो एश्योरेंस देना पड़ेगा। पल्सेस में हमने किया। जो फॉर्मर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम इसी पिछली गवर्नमेंट में एनडीए 1 में। तो उसमें उन लोग के अंडर एक कमेटी बनी है, एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया और ये हुआ क्या सॉल्यूशन हो? बिकॉज़ हम पल्सेस के क्राइसिस से जूझ रहे थे। हम अपना 50% इम्पोर्ट कर रहे थे और उसके प्राइसेस बहुत स्पाइक कर रही थी, इन्फ्लेशनरी बहुत थी वो। तो उसमें ये हुआ कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस हाइक करना चाहिए पल्सेस का, बोनस भी देना चाहिए और एक एजेंसी को लगा करके उसका प्रोक्यूरमेंट कराना चाहिए। विदिन 2 ईयर और 3 ईयर आज हम लोग 170 लाख टन से 230-35 लाख टन के प्रोडक्शन पर पहुंच गए। 250 लाख टन का हमारा रिक्वायरमेंट है। इंपोर्ट्स हमारा नेग्लिजिबल हो गया। क्या किया? जो 3000 था वो 6500 6000 तक पहुंच गया। नैफेड को लगाया गया, आप बफर बनाइए, आप खरीदिए। उन्होंने खरीदा। मार्केट में एक इंटरवेन करने वाली एजेंसी थी। स्टेट्स को कहा आप खरीदिए। एक उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन फंड बनाया गया। आप खरीद लीजिए, उसके बाद बेच लीजिए। जो डिफरेंस होगा वो सेंटर उसको मीट कर देगा। तो ये हुआ और वो दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। माय पॉइंट इज़ दैट कि सरकार को ये बाकी जगह रेप्लिकेट करना चाहिए, खास तौर से ऑयल सीड में। ऑयल सीड में हम लोग अपना रफली 40% इम्पोर्ट करते हैं। 70-80 हज़ार करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं। वो एक तरीके से हमारा इम्पोर्ट है फार्मर की इनकम। हमें फार्मर को ये पैसा मिलना चाहिए हमारे देश के। तो इफ यू कैन शो हिम वे कि आप यहाँ जाइए और इसी तरह धीरे-धीरे हम लोग बाकी भी कर सकते हैं। बट पॉइंट इज़ दैट कि रिफॉर्म्स इज़ ए कंटीन्यूअस प्रोसेस करना चाहिए, साथ लेकर के करना चाहिए था और उसको बिकॉज़ एग्रीकल्चर में कोई भी आप कितना भी बड़ा फैसला ले लो, उसका रिजल्ट आने में 5 से 10 साल लगते हैं। सो यहाँ ओवरनाइट नहीं हो सकता। आई डोंट कंपेयर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह और इनको क्योंकि वो आपने कुछ हज़ार या एक आध लाख मैन्युफैक्चरर्स के लिए आप उस तरीके का लेके आए थे। यहाँ आपके पास 14 करोड़ और डिफरेंट लेवल के जो लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर हैं, वो है। प्लस ये फूड है, जो है फूड एंड फीड है, इसमें हमें सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं देखना, इसमें कंज्यूमर का भी देखना है। अब इसमें तमाम सारे आपके जो डब्ल्यूटीओ के लॉज़ हैं, वो भी इसमें इंटरवीन करेंगे आगे चल के, वो सब भी रीज़न है। तो ये सारा देखना चाहिए था। अब इसमें जो हुआ है उससे मेरे ख्याल से रास्ता निकालने की कोशिश सरकार भी बहुत कर रही है और मेरा जो स्टडी है फार्मर्स का, वो भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि जितना जल्दी हल निकल जाए, वो अच्छा है। यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें अगर आप देखो कि करीब-करीब 1988 का जो वोट क्लब पर एक जो धरना चला था 1 सप्ताह का बीकेयू के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत का। उसके बाद
पहली बार किसान संगठन इस तरीके से एकजुट हुए और इतना बड़ा आंदोलन चला, और ये चला ही नहीं, वो इसको सस्टेन कर रहे हैं। और मेरा अपना जो आकलन है, क्योंकि मैंने उसको भी देखा और उनकी कार्यशैली को भी मैंने, जब से उनका यूनियन 87 में बना, तब से मैंने देखा, बिकॉज़ वो ही कम्स फ्रॉम माय एरिया, मैं अपने वहीं से देख रहा था उनको। और उसके बाद भी मैंने उनको, उनका जो असर था वो खत्म होते देखा, और आई इंटरेक्टेड विद हिम आल्सो। तो उसका इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले एक थोड़ा-सा भूल ये भी हुई गवर्नमेंट की, कि इसको एक प्रांत का आंदोलन समझा गया, फिर 2 प्रांत का समझा गया, फिर 3 प्रांत का समझा गया। माय पॉइंट इज़ दैट कि आप देखिए, जो चक्का जाम था अभी 6 फरवरी का, वो तेलंगाना में भी हुआ, वो महाराष्ट्र में भी हुआ, वो राजस्थान में भी हुआ, वो मध्य प्रदेश में भी हुआ, वो उड़ीसा में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। तो क्या होता है कि कोई भी किसान आंदोलन जो है, वो सब जगह बराबर नहीं हो सकता, और उसके अपने डायनामिक्स भी है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग थे, वो वोकल हैं, रिसोर्सफुल हैं, वो पहले आए और उन्होंने अपने आप को एकजुट किया। मुझे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो मेरी स्टडी है किसान संगठनों की, बीकेयू था, पंजाब में भी बीकेयू था। पंजाब में पहले एक बीकेयू था जिसको अजमेर सिंह लाखोवाल हेड करते थे, और इफ आई रिकॉल 97-98, जब हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे थे देवगौड़ा जी, इसके गुजराल सरकार के टाइम में, तो वहां पर जब मैं गया तो गेहूं की खरीद का सीजन था, मई का। खन्ना की जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, उसमें कहीं ग्रेन नहीं था। मोगा मंडी का जो करीब 1 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है, उसपे एक दाना ग्रेन नहीं था। तो ही वॉज लीडिंग दैट मूवमेंट, और फिर वो पानीपत में आकर के उन्होंने रेल रोके। वो एक चल रहा था। इस बार मैं देख रहा था कि इस बीच टूट-टूट के बहुत सारी यूनियन बन गई, छोटे-छोटे संगठन, और ये 32 संगठनों ने शुरू किया, व्हिच मैनी ऑफ देम वर अननोन। मैं लगता था कि ये कहाँ, ये आंदोलन-वांदोलन नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो इतने फ्रैक्शन इसमें है, ना इनके पास कोई एक लीडर है, एक छोटे से प्रांत में इतने सारे संगठन है, क्या आंदोलन करेंगे ये लोग? बट आई डोंट नो कि शायद वो उनका छोटे-छोटे ग्रुप होने का ही, शायद उनको मोबिलाइज़ करने का उनको एडवांटेज मिल गया। वो यूनिट्स जो उनकी थी एक-एक, उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया, और फिर उनका जो कॉमन प्लेटफ़ॉर्म बना, वो उनको यूनाइट करके लेके गया। फिर जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन संघर्ष समिति जो थी, उसने इनके साथ जुड़ गए, संयुक्त मोर्चा बनाया, और फिर जो बीकेयू एकदम अलग-थलग थी, अ, ये आपका जो मार्च था 26 और 27 नवंबर का, तब तक बिल्कुल अलग-थलग थी। वो धीरे से आकर के उन्होंने अपने स्तर पे शुरू किया, और दिल्ली के बॉर्डर पे वो भी आ गए, लेकिन वो करीब 1 सप्ताह बाद उनके सिस्टम में ऐड हो पाए, और बाकी जो चला है वो अब सब आपके सामने है। मैरिड डिमेरिड पर बहुत चर्चा हो गई देश में। आपने बिल्कुल सही कहा कि शार्पली एक डिवीज़न है प्रो एंड अगेंस्ट में। वी आर अ डेमोक्रेसी। मेरे ख्याल से यहाँ पर चर्चा, बहस और बातचीत वो ज़रूरी है, और उसी में से रास्ता भी निकलेगा। और ना तो कोई भी साइड बिल्कुल ठीक नहीं है अपनी जगह, जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है। दोनों में कहीं न कहीं गुंजाइश है अपने मत को बदलने की, क्योंकि स्थिति ऐसी है। और ये हम माने कि कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं कि जैसे चाइना का है या यूएस का है। चाइना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने 20-25 साल में 25-30% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से बाहर किया, और हम स्टिल, हमारा कुछ भी हम कहें, मोर देन 50% इज़ देयर, और 70-80% वहीं से ही जो अभी भी अपनी आजीविका चलाते हैं, हम वहाँ से लोगों को एग्ज़िट नहीं कर पाए। फार्मर्स की इनकम घटने का ये एक बड़ा वजह हो गया। जो लैंड होल्डिंग साइज़ है, वो बहुत नीचे चला गया। 85% ऑफ 1 हेक्टेयर और बिलो जो है, उसमें उनका जो एवरेज फार्म होल्ड इनकम पर मंथ है, अ, हमारे पास बहुत पुख्ता आंकड़े तो हम लोग सर्वे नहीं करते, लेकिन दैट इज़ अराउंड 7,000 पर मंथ। अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, एक शुगरकेन फार्मर्स की, माय फ्रेंड इज़ राइटिंग एन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, आप लोग देखेंगे। हमने बहुत इन क्लोज़ कैलकुलेशन एक फार्मर कर किया उसका, तो हम लोगों ने जब देखा उसका शुगरकेन का जो उसकी कॉस्ट आती है और जो इनकम है, लेटेस्ट जो है, वो उसको करीब 6,500 रुपया पर बीघा उसको मिलता है। उसमें सारे खर्चे निकालने के बाद, जबकि टोटल इनकम करीब 20,000 है आज के रेट में, 20-21,000 है, बट उसकी कॉस्ट 13,500 पे जाती है। देयर विल बी अ डिटेल कैलकुलेशन, ऑल ऑफ यू विल बी, आई थिंक, रीड दैट पीस, एंड मेबी टुमारो डे आफ्टर इट विल अपीयर। सो ये जो है, तो ये जो एक 24-25 बीघा का किसान है, उसका मंथली इनकम 10-12 हज़ार रुपया आता है।
अब सरकार ने ये भी कहा 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कि हम इनकम को डबल करेंगे और 2022 उसकी डेट दे दी। जो अशोक दलवई हैं, जो अभी नेशनल वेलफेयर अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, पहले वो स्पेशल सेक्रेटरी थे, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने करीब दर्जनों रिपोर्ट दी है और उसको लेकर के अभी कैसा अमल होगा, क्या बेस ईयर हो, वो सब है। हालाँकि शायद सरकार को लगा कि ये कानून लाने इसलिए ज़रूरी है कि हम फार्मर्स के इनकम का जो वादा है उसको हम पूरा करें। बीच में जब जेटली जी का लास्ट बजट था, उन्होंने अनाउंस किया था एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले को लेकर के हमने कॉस्ट प्लस 50% दे दिया है। बट उसमें जो A2 प्लस FL जो है, फैमिली लेबर और A2 कॉस्ट जिसमें इनपुट कॉस्ट सारा होता है, उसके ऊपर वो कैलकुलेशन किया जिसमें बहुत सारी फसलों का पहले भी मिल रहा था। वो उस वक़्त तो अच्छा लगा बट उसको भी लेकर के सवाल खड़े होने लगे। तो इससे भी लोगों का ये था कि जो उनको थोड़ा अच्छा लगा था उसपे ये अब क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। एक और बड़ी बात है, मैं आपको कहूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो ₹6000 साल का किसानों को दिया गया, उसका एक बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट सरकार को मिला। लेकिन अब इस आंदोलन के चलते क्या हो गया है कि हर किसान अपना कैलकुलेट करता है कि अगर उसका फसल एमएसपी पर नहीं बिकती, तो उसको कितना लॉस होता है। तो अब उन्होंने कहना कि हमें तो आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दीजिए, हमें ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मेरा नेट लॉस उससे ज़्यादा है। तो ये तमाम सारे अब हो क्या गया कि एक-एक मसले इसमें जुड़ते चले गए। इट इज़ नॉट जस्ट 3 एक्ट, मैं ये बोलूँ। ये अब सिर्फ़ 3 कानूनों की बात नहीं रह गई है। ये एक ओवरऑल जो एग्रेरियन इश्यूज़ हैं, वो इसमें कल्मिनेट हुए हैं। इसमें कुछ रीज़नल इश्यूज़ भी कल्मिनेट हुए, इसमें कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हुई है, इसमें कुछ सोशल जो है इश्यूज़ भी आ गए हैं, जो है उसमें कास्ट फैक्टर्स भी हैं। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट एन एजिटेशन अगेंस्ट 3 लॉज़। तो इसीलिए जो इसको स्ट्रेंथ मिल रही है अगर आप देखेंगे। अब क्या है कि आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे नहीं है, जैसे आपने ज़िक्र किया, मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी है। तो वो अब नाउ इट इज़ गोइंग एवरीवेयर। वो वहाँ पर लोकल हो रहा है। अब लोकल में अगर आस-पास के 50 गाँव के लोग आएँगे, तो नाउ द मैसेज इज़ गोइंग टू दोज़ 50 विलेजेस आल्सो। अर्लियर क्या था, लोग सिर्फ दिल्ली आ रहे थे। तो किसी गाँव से 10 लोग आए, किसी से 20 आए, किसी को नहीं पता जो खबरें छपी उससे। नाउ इट इज़ गोइंग इनटू देयर हिंटरलैंड। तो ये अब मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छा इसलिए है कि इश्यूज़ के ऊपर जागरूकता बढ़ रही है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरे, ये जो ऐसा विषय है जिसके ऊपर मेरे जैसा आदमी, अभी मैंने 23 अक्टूबर को एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए लेक्चर दिया था, मीडिया एंड एग्रीकल्चर। तो उस वक़्त मैं कह रहा था कि जो ये इतना बड़ा जो हमारा रूरल इकोनॉमी है, जिसका हिस्सा भले ही हम 17% एग्रीकल्चर की बात करें जीडीपी में हिस्सेदारी की, मैं उसको नहीं मानता क्योंकि वो हार्वेस्टिंग के बाद उसको काउंट नहीं किया जाता। मेरा मानना है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 45 टू 50%। और जो इतनी बड़ी आबादी हमारी है, उसके बारे में जो कवरेज है मीडिया में, दैट इज़ मिनिमल। मतलब उसका हिस्सा बहुत छोटा है। वो 2% 3% भी काउंट नहीं करता और उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें डिटेलिंग बहुत कम हो रही है। आवर मेनस्ट्रीम मीडिया इज़ नॉट एड्रेसिंग दैट सेक्टर प्रॉपर्ली। उसको जो उसका हक है, मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है और या उनके इश्यूज़ को लाने में, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जो 3 महीने से हम देख रहे हैं, उसमें नाउ एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग टू दैट। दैट इज़ आल्सो बेनिफिशियरी फॉर देम, उनको अपनी बात कहने का जो मेरे ख्याल से मैं जो जिस तरीके का आपसे बात हुई, जो चीज़ें मैं कहना चाहता था मैंने कहा। अब हम सब लोग बात कर सकते हैं, किसी का कोई मेरे जो बातचीत है उसको लेकर के कोई क्लैरिटी लेना हो, कोई सवाल पूछना हो तो आई एम देयर। थैंक यू हरवीर जी। आई थिंक आपने एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को रखा। आपकी जो आपने जो कहा कि अभी जो डिमांड हो रहा है कि एमएसपी को एक लीगल स्टेटस दिया जाए, उस पे दो तरह का राय है। एक तो है कि इकोनॉमिकली इट इज नॉट फिजिबल, आवर इकोनॉमी इटसेल्फ विल कोलैप्स अगर हम लीगल स्टेटस दें, और इसका मतलब फार्मर वुड बी एबल टू बाय ए सेल at the MSP rate or above it, both in the private and public. आपको क्या लगता है कि ये एक जो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के लोग हैं वो बात करते हैं, लेकिन आपका उस पर क्या राय है? मोंटी जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया जो मौजूदा इशू है। मेरा अपना मानना है, बिकॉज़ I'm not just agriculture journalist. I have seen government finances also. I covered finance ministry and I did
corporates and everything very closely. So मेरा मानना है कि एक तो जो कॉस्ट की बात हो रही है वो एग्जैगरेटेड है। आप देखिए कि हमारा जो एवरेज जो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो 15 to 20% आता है, जो मार्केट में आता है पर्सनल कंजम्पशन के बाद और इस सब के बाद। और कुछ क्रॉप में ज्यादा आता है, बट वो किसी रीजन में ज्यादा आता है, किसी में नहीं भी आता। तो एक तो ये है कि दूसरा पॉइंट है कि आप अगर गारंटी देते हैं, my opinion is government should go on a middle path. Government should give the guarantee that everybody should buy above MSP or at least at MSP, or but need not to give a guarantee of 100% procurement by the government. Any private buyer should buy, this is the benchmark price, you should buy at this price. Either I buy or you buy. Private sector buys or government buys. You should buy at this benchmark, because my point is that जो benchmark है MSP का, that is the cost calculated by the government agencies. Below that, definitely it is a loss to the farm. क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारा डाटा कलेक्शन का जितना प्रोसेस, उन्होंने ही एमएसपी कैलकुलेट किया, उसमें कॉस्ट इंक्लूड की। तो ये कहना कि आप एमएसपी से नीचे नहीं खरीदें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये सारा सरकार को नहीं खरीदना होगा। मैं आपको देखिए बताता हूँ, सपोज के आज कॉटन का जो एमएसपी है, अब कॉटन का क्रॉप लगभग खत्म हो रहा है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ज्यादातर खरीदा है और एमएसपी पे खरीदा है, but today global prices has moved upward. All these private buyer, including exporters, will buy from CCI. This year CCI will make a profit. मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें कॉटन फार्मर को जो एमएसपी मिला, उसमें सरकार का नुकसान कहाँ हुआ? उसमें तो फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट, पल्सेस का आप देखिए, पल्सेस का एमएसपी 50 से 60 रुपए के बीच में। हम और आप जो पल्सेस खरीदते हैं, कोई भी पल्सेस का दाम आप मार्केट में चले जाए 80 रुपए से कम तो नहीं है, 80 से 125 150 रुपए के बीच में है। अगर गवर्नमेंट कहती है आपको 60 पे खरीदना पड़ेगा और आप उसका प्रोसेस करके 10% आपका लॉस होगा, दे यू कैन ऐड 15-20% कॉस्ट इन प्रोसेसिंग इन पल्सेस। सो व्हाट विल यू डू? यू विल मेक मनी, डेफिनेटली यू विल मेक मनी, बट फार्मर विल आल्सो गेट मनी। अनदर एग्जांपल, व्हीट का एमएसपी 1925 रुपया है। किसी भी शहर में आप चले जाइए, नाउ फ्लोर इज बीइंग सोल्ड इन पैकेज्ड 30 to 40 रुपीज के बीच में हम खरीदते हैं। Who will justify it? Who will justify के 19 रुपया का रॉ मटेरियल जिसमें 10% कॉस्ट आती है, उसको आप 80% प्राइस ऊपर बेचें। सो मुझे तो 30 रुपया खरीदना, आपको भी 40 रुपया खरीदना है, फार्मर को 19 रुपया तो मिलना चाहिए, ठीक है? सो एनीबडी हु वांट टू डू द ट्रेड इन फूड एंड कमोडिटी, डेफिनेटली उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये एक पॉइंट है। एंड ऑल एवरीवेयर यू कैन गो, एनीथिंग यू कैन गो। नाउ फार्मर्स आर सेलिंग their milk at 35 rupees in, suppose in Hapur, which is just 40 kilometers from 50 km from Delhi, but me and you are buying at 56 rupees per liter. It adds some margin, it adds 1 rupee of packaging and transportation, but see, the point is that in sugar, government has fixed minimum sale price of 31 rupees. Each and every sugar mill are selling above 31. They cannot sell below because there is a law. So you have the example, you can enforce, there is no problem. My point is that don't make a penal provision. Don't make it ke logon ko jail ho jayegi. Don't put all these things, legal issues like that. But make a simple provision. It is legal. You have to buy either MSP or above MSP. Even fixation of MSP is a suppressed price. And I'm telling you, MSP calculation is not absolutely correct. There you see, our 40 to 50% farmers still takes credit from money lender or other than institutional sector. But here, when the CSCP fix the price, they calculate the interest rate of 7% or 4%, जो concessional credit government देती है. Same thing, they calculate cost of irrigation through this electricity, but large area is being irrigated by diesel pumps, but diesel prices has gone there. Then when they calculate the cost of land rent, they takes an average. They don't take the higher side. So all these internal things which nobody will come out with in open,
but it is the fact. But despite that, keep it suppressed like that. But if you can fix, say, floor rate, let it remain a floor rate. You see, even in, the best organized market is stock market. But when any stock crash or Sensex crash, what exchanges do? They suspend the trading. After 10% crash or so, they suspend. No. So they control the loss to the investor. So I strongly argue this point. And there are in public domain, maximum cost to government will not cross 4-5 lakh crore. And at the same time, whatever government is procuring, it is not the 100% cost. Government sells this produce. It is not you have bought it, it is final. So if government want to provide food grain at rupees 2 and 3 per kg, because there are a large number of person in society, they can't afford to buy higher cost food. But it is not farmers' problem. It is government's welfare scheme. So you cannot penalize farmer for that. He provided you material. You use whatever way you want to use it. So my point is that whoever is making this argument, I don't buy this argument. And it can be argued with facts that economy will not collapse. Actually, what happened in this case, many of our friends, economists and media and technocrat has gone extreme to justify the point. So one should not go extreme. You should be practical and you should honor the facts. I have just one more question कि आप ये बताइए कि जो एक solution के तहत किया जाता है कि instead of a central law order इसको state government को दे दिया जाए. State governments are free to implement their own laws. This is a guideline, but state governments are free to do it. Then problem, will there be a solution or you don't think that will be a right solution? I think definitely agriculture is a state subject. और एग्रीकल्चर में कोई भी बड़ा चेंज आप स्टेट के बिना नहीं ला सकते, बिकॉज इंप्लीमेंट स्टेट मशीनरी ही करेगी. सो अगर स्टेट को ऑन बोर्ड लिया जाए या पहले, बिकॉज वी आर ए फेडरल कंट्री, तो वो लिया जाता तो शायद ये चैलेंज ना होता. और इसमें कुछ अमेंडमेंट करके और ये सब करके, अगर ये सरकार ये कहती है कि ठीक है, वी डोंट वांट सेंट्रल लॉ, स्टेट शुड, दिस आर द मॉडल एक्ट, state should do this. Like in 2018, government came out with a contract farming model act, very detailed act. तो अगर ये करें, एक गाइडेंस है सेंटर से, ये गाइडलाइंस हैं, फॉलो दिस गाइडलाइंस. एंड इंटरेस्टिंगली आई एम टेलिंग यू कि अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसका रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि अगर स्टेट एक्ट 1, 2, 3, 4 ये स्टेप्स अगर लेंगे तो उनको 45,000 करोड़ का एक उसमें फंड क्रिएट किया गया है to promote agriculture diversification, exports, liberalize everything. So you will be, but whoever will implement will be eligible to take the benefit of that fund. तो हमें थोड़ा इस तरह से मेरे ख्याल से जाना चाहिए. एसपी त्रिपाठी जी हैं क्या? जी सर, नमस्कार. हाँ सर. हाँ त्रिपाठी जी, आपको कुछ बात करना है? जी नहीं, बहुत नॉलेज वाला रहा ये चला गया, ये बहुत इनोवेटिव आर्ग्यू का. उसमें मुझे जो कुछ चीजें लगती हैं कि अब बलवीर सिंह साहब ने भी कहा कि चर्चा नहीं, प्रक्रिया में कमी रही, सरकार ने समझा नहीं, तो ये वन साइडेड अप्रोच है. अगर यही मान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, रिजल्ट्स ने किया, गवर्नमेंट कह रही है कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली कि आइए क्लास वाइज 3 कानून में बताइए कि काला क्या है. पब्लिक डोमेन में अभी तक किसी भी बड़े किसान नेता ने ये नहीं कहा कि कानूनों में 3 कानूनों में कानून जो है इनमें ये काला है. दरअसल ये जितना किसानों का आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन पॉलिटिकल पैशन का हो गया है, अपनी जमीन तसने का हो गया. और जब ये स्थिति होगी कि रिजिडिटी की बात भी हुई, तो रिजिडिटी गवर्नमेंट तरफ से कहाँ है? अगोती
तो पराली वाला मामला नहीं वापस होता, बिजली का जो मसौदा आना है वो नहीं बस होता, ट्रैक्टर्स के पर बात नहीं होती पुरानों के लेके, तो रिजिडिटी के लेवल पर है। आखिरी बैठक से के बाद जब किसान नेता निकले, हन्नान साहब ने कहा कि सरकार कुछ हम आगे बढ़ी है, सकारात्मक माहौल हुआ, आगे कुछ बनेगा। और उसी समय जो टीवी दिखला था राकेश टिकैत को, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उससे ये रहा था साफ साफ कि आंदोलन जारी रहेगा। तो इसमें केवल किसानों की साथ सहानुभूति अन्नदाता है सबकी है, लेकिन क्या केवल किसानों का आंदोलन रह गया? और ये सवाल अभी भी है कि क्या ये पूरे देश का है? अभी हरवीर साहब कहा कि तेलंगाना में, आंध्रा में और कहाँ ये चक्का जाम हुआ, सही, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोग निकले? तो मार्जिनल फार्मर्स का ये आंदोलन है, छोटे किसानों का है कि बड़े किसानों आड़तियों का है कि उन सारों का है जहां एपीएम खत्म होने से रेवेन्यू खत्म होगा? ये मेरी कुछ आशंकाएं, मैं सवाल उनके हरवीर सिंह साहब के उस पे नहीं उठा रहा, और उनका चूंकि मैं बहुत कुछ उनके उससे समझा, लेकिन ये कुछ मेरी आशंकाएं हैं सर जी। देखिए, त्रिपाठी जी ने जो बातें कही उनका जो है महत्व है, और ये बात ठीक है कि उसमें एक जो आंदोलन है वो सिर्फ अब उसमें सिर्फ फार्मर्स नहीं है, और ये पॉलिटिकल उसके इम्प्लीकेशंस आने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको टेकअप कर लिया है और जगह जगह वो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरली आंदोलन हम सबने देखे हैं, उसका पॉलिटिकल फॉल आउट तो होता है, और जो उसका जो अपोनेंट्स होता है वो उसका फायदा उठाने का कोशिश करता है। पहले भी उठाया, अभी भी लोग उठा रहे हैं, और ये कोशिश करेंगे कि जो वेव है उस पर चढ़ करके वो उसको पॉलिटिकल माइलेज ले। तो ये फैक्ट है। ये बात आपकी, जैसे आपने कहा कि रिजिडिटी वाला, आई एम अगेन सेइंग कि ये दोनों तरफ रिजिडिटी है, और सवाल है कि सरकार को पहले अगर ये था कि पहले कहा कि हम उसके फायदे बताएंगे, एक फायदे बताना ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अब इतनी चर्चाएं हो गई हैं, और या तो कोई छोटा ग्रुप हो वो क्लोज वाइज डिस्कस कर ले बैठ के 10 लोगों का, एक तरफ 40 संगठनों के 50-60 लोग बैठे हुए, एक तरफ सरकार, वहां पर क्लोज वाइज जो है डिस्कशन कैसे हो पाएगा ये तो वो लोग जाने, और करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, जो है उसको क्लोज वाइज डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका ये पॉलिटिकल माइलेज लोग ले रहे हैं, और वो अब काफी हद तक दिख रहा है, जो है ये सरकार भी इस बात को मानती है, जो बाकी लोग हैं वो भी सीधे नहीं बोलेंगे, परोक्ष रूप से मानेंगे, पार्लियामेंट में वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो है तो, और इसमें पॉलिटिकल चर्निंग भी हुई है कि अपने पॉलिटिकल लॉस की वजह से कुछ एनडीए के सहयोगी को छोड़ के जाना पड़ा, तो ये सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। ये बात ठीक है कि जैसे हमने पहले ही कहा कि सिर्फ 3 कानूनों की बात नहीं है, उसमें उन्होंने पराली वाला भी ऐड कर लिया, उसमें पावर बिल पे जो सब्सिडी के रोकने के लिए जो एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है उसको भी लेकर के आ गए, अब उसमें एन नंबर ऑफ थिंग्स आ गए, दर्जनों चीजें हैं उसमें, तो हो सकता है उसमें कोई और बात भी ऐड हो जाए आगे आके। तो ये है, ये तो देखिए किसी भी आंदोलन में ये चीजें, जब किसी को लगता है कि हमारा सक्सेसफुल चल रहा है तो वो फिर इश्यूज उसमें ऐड, लेकिन फिर भी होगा यही, जिस दिन फैसला होगा वो मुख्य रूप से इन्हीं बातों पे फैसला होगा। बाकी चीजों पे गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया कि हम जो पावर बिल है उसको हम लोग परस्यू नहीं करेंगे, जो अध्यादेश जो इसके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल एनसीआर वाले के ऊपर जो हुआ है उसमें जो क्रिमिनल धारा है उनको हटा देंगे, उसको देखेंगे। तो गवर्नमेंट इज आल्सो कमिंग एज विद अकोमोडेटिव अप्रोच, नॉट सेइंग दैट वन, जो है तो ये है, इसमें ये मेरा कहना है। आप क्या है क्लास वाइज वो कि नहीं होना चाहिए, ये है नाक की लड़ाई जिसे कहते हैं, ये है क्लास वाइज डिस्कशन होगा कि नहीं होगा। तो आपकी एज ए मीडिया राय क्या है?
देखिए त्रिपाठी जी, मुझे लगता है ये क्लोज वाइज डिस्कशन तो नहीं होगा। सरकार चाहती है, लेकिन अब जो किसान संगठन है वो नहीं करेंगे। किसान संगठनों में भी अलग अलग धाराएं हैं। नहीं, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ लोगों का रुख था, जैसे सरकार ने कहा कि 1.5 साल इसको सस्पेंड करते हैं, कुछ का था कि सरकार और टाइम भी बढ़ा सकती है और हमें इसको MSP की गारंटी लेकर के और इससे हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन कुछ संगठन है जो रिजिड है, जो रिपील से नीचे मानने को तैयार नहीं। अब ये जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है, ये उनका भी जिम्मा बनता है कि आपस में एक दूसरे को कन्विंस करे कि हमें कहाँ आना है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो कुछ लोगों की रिजिडिटी है उस पर फैसला नहीं होगा, और ये वो लोग, उसमें से कुछ लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं। जिस तरह का मेरा इंटरेक्शन है, तो वो लोग उसको स्वीकार, बट अब ये उनका है कि वो किस तरीके से अपने सहयोगियों को कहीं एक मिडिल ग्राउंड पर लेकर आते हैं। आप क्या ये लगता है एज ए रियापन इससे रीजन हो गवर्नमेंट सिचुएशन? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। किसान आंदोलन है, क्योंकि राकेश टिकैत ने 26 जनवरी के बाद से हाईजैक कर लिया है। दूसरे किसान नेता तो उतना फोर फ्रंट नहीं दिख रहे। नहीं, मैं आप सही कह रहे हैं कि उसके बाद में हाईजैक कर लिया, ये मुझे पता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं आई विल नॉट से हाईजैक वर्ड, बट मेरा पॉइंट है कि जो 26 तारीख के पहले तक उनकी भूमिका बहुत सीमित थी। उनका सपोर्ट भी उतना ज्यादा उनके पीछे जो था उतना ज्यादा नहीं था। आई एग्री, मैंने लिखा भी है कि वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स का पार्टिसिपेशन उतना बड़ा नहीं था उस दिन तक। लेकिन एक तो 26 तारीख की घटना जो हुई उसमें लगा था कि आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि उसने आंदोलन को बहुत ही उसके साथ मतलब गलत उसके साथ जोड़ा उसको, क्योंकि उसको उनको बहुत डैमेज हुआ और ये पूरे देश में उसका क्रिटिसिज्म हुआ, और उनके भी अंदर कहीं चला गया था कि हम लोग खत्म हो गए इसकी वजह से, क्योंकि ये गलत काम हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखो, कुछ लोगों ने छोड़ के गए 27 तारीख को कुछ संगठन, और लगता था कि ये 28 तारीख को अगर दिल्ली यूपी बॉर्डर पे आंदोलन खत्म हो जाता तो फिर आंदोलन कहीं सस्टेन कर पाता। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वो लग नहीं रहा था, फिर ये खत्म ही होना था। लेकिन वो जो 28 तारीख का 6 बजे से रात के 11 बजे तक का जो एपिसोड है, और उसमें जो भी घटनाक्रम हुआ सब लोगों ने देखा, एंड दैट इमोशनल जो आउटबर्स्ट था, उससे सडनली जो एक खासतौर से वेस्टर्न यूपी में और जाटों में जो एक रिएक्शन आया, दैट वाज इमेंस। 11 बजे तक जहां पहले वहां पे 1000 लोग नहीं थे, वहां पे 5000 लोग हो गए थे। रात भर लोग आते रहे। आई रीच देयर एट 2:30 इन द मॉर्निंग। तब तक वहां 7-8 हजार लोग आ गए थे, और लोग आ रहे थे, और फिर 29 तारीख को सबने देखा क्या हुआ। और उसके बाद राकेश टिकैत फार्मर्स में और अपनी कास्ट में एक बड़े नेता के रूप में वो स्थापित हो गए हैं। वो आप देखिए उनकी रैली और जो पंचायतें कैसी हो रही हैं, और उसी को देख करके जो बाकी किसान संगठन थे उनको भी कहना पड़ा कि इन्होंने आंदोलन को बचा लिया, और जब बचा लिया तो नाउ दे आर, बट उनका अभी भी कहना है कि जो पहली व्यवस्था थी वही रहेगी। बाकी ये जाहिर सी बात है, जिसको लगता है कि मेरा आधार बड़ा हो रहा है वो ज्यादा असर्टिव होता है, और मीडिया भी उसी को हाईलाइट करता है, तो वो जरूर उनके दिमाग में भी गया कि मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, या कि हम सब लोग साथ में हैं, क्योंकि किसी को भी अगर अलग कोई हो जाएगा, अकेला कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये भी फैक्ट है। बिकॉज यू आर बेसिकली आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में बात कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बरसों के बाद हमारे देश की सबसे मजबूत और डिसाइसिव गवर्नमेंट है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कोई ऐसी कमजोर सरकार है जिसको आप झुका लेंगे। तो दैट इज द पॉइंट, ये उन सबके भी दिमाग में है। Let's take next Nishant Rai ji. Any questions? सर मेरा एक सवाल ये था कि मतलब एग्जैक्टली कृषि कानून जो अभी चल रहे हैं इससे नहीं है, बट क्योंकि ये जो APMC की व्यवस्था है ये बिहार में 2005 में खत्म हो गई थी, तो सर उसके क्या लेसन्स हैं?
उससे हमें क्या मतलब सीख मिली है, और ये जो नए कानून आए हैं क्या इसमें कहीं उन सीखों को या उससे जो समझ में आया उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है क्या सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों कहा अपना जो सब उनका राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जो उन्होंने जवाब दिया था कि एपीएमसी रहेगी। एपीएमसी इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो एपीएमसी मींस कि वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट या एक हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कि इन कानूनों के बनाने वाले जो लोग हैं उनमें हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर रमेश चंद जो नीति आयोग के मेंबर हैं। उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था इन कानूनों के बनने के बाद, एक बार बिल आने के बाद, वो ऑर्डिनेंस के बाद किया था, एक बार मैंने अपना जो हमारा रूरल वॉइस है उस पर अगर आप जाएंगे, इट इज अ वेरी डिटेल इंटरव्यू, 3000 शब्द का, आप देख सकते हैं। उसमें वो कैटेगरिकली बोलते हैं कि जो बिहार ने एपीएमसी को खत्म किया, मैं उसके खिलाफ हूँ। एपीएमसी इज मस्ट। क्या है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत फ्रेगमेंटेड है, हमारे किसान बहुत छोटे हैं, उनका बार्गेनिंग करने की क्षमता बहुत सीमित है। उनको हमें कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था दे के रखना पड़ेगा जहां उनको कानूनी सपोर्ट मिले, जहां सरकार साथ में खड़ी हो। और एक चीज मैं बताऊं आपको जो कि एपीएमसी को है, एपीएमसी में जो ट्रेडर खरीद करता है उसके ऊपर एक बाइंडिंग है कि जो उसने सामान खरीदा उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। ये एपीएमसी की गारंटी है। अगर वो नहीं करेगा तो एपीएमसी उसके असेट्स को बेच करके पेमेंट करा सकता है। बट इन दिस न्यू एक्ट देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए एक हम लोगों ने स्टोरी भी किया था कि सबसे पहला फॉल आउट हुआ था एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, एक किसान ने अपना जो है मक्का या सोयाबीन कुछ बेचा था एक फार्मर उसको, ट्रेडर को, और उसको पेमेंट है डिसअपियर। वो पहला केस है जो है जिसमें, तो ये स्थिति है। तो इसीलिए एपीएमसी को तमाम सारे हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या मिनिस्ट्री में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एवरीबॉडी एग्रीज वी नीड एपीएमसी, वी हैव टू इवन स्ट्रेंथन एपीएमसी। मतलब मार्केट, सरकार ने भी कहा था कि जो 22,000 हाट बाजार हैं उनके लिए एक्स्ट्रा फंड देंगे, बिकॉज किसानों को कहीं ना कहीं एक मार्केट तो, ऑर्गेनाइज मार्केट तो चाहिए, और जहां उसको कोई उसके जो हित है उनके संरक्षण के लिए कोई एजेंसी काम करती है। देवेंद्र सचान जी, आपका कोई सवाल है? हाँ सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा। हरवीर सिंह जी नमस्कार। और एक आपके मुझे इस लेक्चर में बहुत सारी कुछ जानकारियां मिली, क्लियर हुई, लेकिन थोड़ा मुझसे थोड़ा हटकर इसमें क्वेश्चन है कि ये सब करने के बाद किसान यूनियन जो है, जो उसके लीडर है, उन्होंने किसानों की प्रोडक्शन कास्ट को कितना कम करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? जो इस पे गवर्नमेंट से कभी उन्होंने क्या इस तरह का कोई बात किया है कि उनकी कंपनी के उनका जो प्रोडक्शन कास्ट कैसे कम किया जाए? इस पे क्या कोई मतलब अभी तक इन्होंने यूनियन बनाना बहुत अच्छी बात है, किसान, हम सारे किसानों के वो बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो अपने कास्ट को कैसे कम करें, इसके लिए क्या उन्होंने वो उठाया, ये बताइए। देखिए, आपने बहुत वैलिड बात कही है कि फार्मर्स की आमदनी बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक तो उसकी लागत कम कर दो, उसका उत्पादकता बढ़ा दो, और उसका दाम बढ़ा दो, है ना। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें ये एक चीज मानिएगा, पहले तो मैं कहूँ कि जो किसान के संगठन है, जो यूनियन है, वो बहुत ही वेग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता। वो कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं, बाकी लोग जुड़ते चला जाता। अगर अभी आप किसी भी संगठन से एक लिस्ट मांगो कि आप हमें 4,000 लोगों का लिस्ट दीजिए जो आपके मेंबर, सो बिकॉज दे विल नॉट एबल टू प्रोवाइड, टू बी फ्रैंक। ये रैलिंग पॉइंट होता है कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन उनका लीडरशिप ज्यादा होती है और उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड उनका मेंबरशिप वगैरह नहीं होता। उसमें वो बात तो कर सकते हैं, खाद का दाम कम कर दो, बिजली का दाम कम कर दो, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ थिंग कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन उसका भी कोई स्ट्रक्चर्ड डिमांड चार्ट उस तरह नहीं होता, या वो कोई ऐसी साइंटिफिक अप्रोच के लिए कभी मीटिंग्स नहीं करेंगे कि हम एक इंटरेक्शन हो जहां पर जो है कॉस्टिंग कम हो जाए और फार्मर्स को बेनिफिट हो।
तो इस पे मैं फुल्ली आपसे एग्री करता हूँ कि इस तरीके का कभी कोई चीजें आगे भी नहीं मिलेंगी। इवन इवन मैं बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि ये टाइम एंड अगेन जब कुछ मसले होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। अदरवाइज इनका कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उस तरीके का नहीं होता जो कि जिसमें कंटिन्यू इस तरह की चीजें होती रहे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होती रहे नॉर्मल कॉमन फार्म। सिंधुजा जी। नमस्कार हरदीप जी, मैं तो हमारे पुराने मित्र हैं और हम लोगों ने वर्षों जर्नलिज्म किया है, रिपोर्टिंग की है। एक पॉलिटिकल पार्टी भी हम लोग साथ साथ कवर करते थे, मोहन प्रकाश के घर पे, शरद यादव का लंबे समय तक हम लोगों ने एक संगठन भी हम लोगों ने बनाया था, बिजनेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन, राजेश रपड़िया जी के साथ। रणवीर जी बहुत क्लोज रहे हैं हमारे एक समय में। पिछले 10 से ज्यादा हो गया मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं दूर हो गया, तो शायद मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। तो मुझे तो बताइए, आपका का शो शर्मा से होता रहता था इंडियन एक्सप्रेस पर। हाँ, ये एग्रीकल्चर को लिखते रहे आप, तो मैं जाना कि आपका जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर चल ही रहा है और लंबे समय तक आप ज्यादा होती है। तो सवाल मेरा थोड़ा सा है, सरकार से सवाल तो है कि 1998-99 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो एक बार फर्टिलाइजर का एक मुद्दा उठा था जिसमें फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कम कर दिया गया। तो पूरा विपक्ष जो है, सरकार पूरा हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि यशवंत सिन्हा को लोकसभा में खड़ा होकर कहना पड़ा था ठीक है 40 रुपया मैंने बढ़ा दिया है फर्टिलाइजर पे, इसको घटा के 20 रुपया कर दो, लेकिन फिर भी हंगामा नहीं हुआ और अंत में फिर उनको 20 रुपया भी फर्टिलाइजर हटाना पड़ा। मतलब फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चर का हमारा ऐसा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है इस देश में, क्योंकि 70-80% सही बात है हमारा ये, लेकिन हमें ये कहीं ना कहीं ये लगता है ये इंटरनेशनली एक प्रेशर भी हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर कि हम लैंड रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म, ये दो चीजें यहाँ पर जो जिस इन्वेस्टमेंट की बात होती है या इन्वेस्टमेंट किसी तरह की बात होती है, ये दो चीज आ ही जाता है, भाई लैंड रिफॉर्म करना है और लेबर रिफॉर्म करना है। इसमें हम बहुत पीछे हैं अभी, पहली बात। तो गवर्नमेंट अगर ये रिफॉर्म कर रही है तो ठीक है, किसानों का हक है। इस पर सिलेक्ट कमेटी में जिस तरह से नहीं गया और राज्यसभा में हुआ सब जानते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको डिस्कस नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस भी लाया गया, तमाम चीजें हैं। तो एक बार क्यों नहीं किसान संगठन बीच का रास्ता, कॉन्सिलिएटरी रास्ता अपनाते हैं। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है वो लेनिन की जो बात होती थी कि वही डुलक्स फार्मिंग, ये कैपिटलिस्ट फार्मर्स है, ये कैपिटलिस्ट फार्मर्स जो डिपार्टमेंट कह रहे थे हाईजैक कर दिया है किसान संगठनों को। टिकैत जैसे लोग, अब टिकैत जी सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में, जब इनके पिता, ये अपने पिता के कद के नहीं है, इतना मैंने 287 का बोर्ड कलर पर देखा था क्या हुआ था, और लाखों की संख्या में शामली और मुजफ्फरनगर से आ गए थे, तो मैं भी उसको देखा था उस आंदोलन को। उसमें ये कहीं नहीं टिके थे, एक मंच बना था बोर्ड क्लब पे, आपको याद होगा, और उसको हुक्का रखा हुआ था, बड़ा सा हुक्का रखा हुआ था। तो ये एक किसानों की सॉलिडारिटी का एक सिंबल है, हुक्का है जो है। लेकिन एक चीज हमको ये भी किसी ने बताया कि हर एक महापंचायत जो अभी हाल में हुआ है, इसमें सब लोगों को ठेका दिया गया है, हर मुखिया तुम अपने गांव से अगर 10 नहीं भेजोगे तुमको निकालते हैं जात पात से। तो जिस तरह का पता नहीं झूठ है कि सत्य है, तो इस तरह से किसानों को मोबिलाइज करके ये गाजीपुर बॉर्डर से घाटगढ़ नदी के क्षेत्र मैंने देखा है, तो वहां पर इस तरह के लोग आए हैं और तमाम चीजें हैं। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है किसानों के बारे में भी, और सरकार किस तरह से रिजिड है, ऑब्स्टिनेट है, ये सब चीज दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बड़ा शालीनता से जो नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने जो सब बातें कही उन पर बहुत अच्छा लगा, और इस चीज को जारी रखना चाहिए। विज्ञान भवन की जो बैठक है इसको कंटिन्यू करना चाहिए और मौका दिया जाना चाहिए, किसानों को भी मौका मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अपना पक्ष रखने का मौका चाहिए। इसको ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। दे शुड नॉट बी ऑब्स्टिनेट लाइक एनीथिंग। अब जैसे करते हैं रोल बैक, मैं नहीं कह रहा हूँ रोल बैक कर ले, जसवंत सिन्हा ने रोल बैक कर लिया था 98 वाले इस बजट के बाद, मैं ये नहीं कहता रोल बैक
लेकिन हाँ, तो उसको ठीक है, अभी एक्चुअली थोड़ा ये उनको 2 बजे में और एक मीटिंग में जाना है, तो ये नहीं, मैं अभी सुंदर जी से बात से सहमत हूँ कि दोनों बाप बेटे में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है रोल बैक का, जब यशवंत सिन्हा ने 1 रुपया किलो यूरिया का दाम बढ़ाया तो जो 50 रुपया बैग आता था उसमें बाद में चेंजेस किया गया, बड़ा हंगामा हुआ था। और तमाम सारी सरकारें अपने फैसलों को वापस लेती रहे, बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसमें किसी को भी नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। और रोल बैक एक, हालांकि हमारे अखबार लिखते थे रोल बैक गवर्नमेंट, रोल बैक, इट्स नथिंग, ये तो माइंडसेट जर्नलिस्ट का भी है। सरकार है, उसने एक फैसला लिया, उसको लगा कि इसमें कुछ खामी रह गई, उसने बदल दिया, उसमें क्या हो गया? हमें तो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो ये पॉइंट है। बट मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए और रास्ता निकलना चाहिए। और आपने सही कहा मोंती जी के, आप प्लीज कंटिन्यू, मुझे क्योंकि 2 बजे मेरा एक मीटिंग है। एक डॉक्टर पीसी सिंह इट्स सर बोल रहे थे, आपको काफी सुनाई नहीं पड़ रहा था, और शायद आप लोग यशवंत सिन्हा की बात कर रहे थे, रोल बैक जो कल लिखा उन्होंने एक्सप्रेस। एनीवे, हम एमएसपी से रिलेटेड एक जो मुझे दिमाग में बार बार आता है, हम लोग आपस में भी बात करते रहते हैं, और आपने काफी अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि नहीं, इकोनॉमिकली आपके हिसाब से वायबल है। अगर इकोनॉमिकली वायबल है और सरकार उसके बाद भी एडमेंट है एमएसपी, मुझे लग रहा था, जो मैं देखता हूँ टेलीविजन और अखबारों में पढ़ते रहता हूँ, जो भी छोटा मोटा, आपको तो ज्यादा जानकारी, हम लोग तो एकदम बाहर हैं, तो लगता था कि शायद एमएसपी अगर सरकार मान ले तो बहुत कुछ बात मामला सुलझ सकता था, क्योंकि बार बार लोग डिमांड करते हैं एमएसपी को किया जाए। और मैं जो पढ़ते रहता हूँ, मुझे ये बात दिमाग में बार बार कौंधते रहता है कि ये जो सरकार, आपने कहा कि इकोनॉमिकली वायबल है, सरकार में बड़े लोग बैठे हुए हैं, सब समझदार लोग, फिर भी क्या डब्ल्यूटीओ का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है। दिग्विजय सिंह ने जिसकी बात की चर्चा की थी, मैं दिग्विजय सिंह को कोट नहीं करना चाहता हूं, मैं इन्हीं लोगों के ग्रंथों को जो मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे में, आप देखिए, जब से अरविंद सुब्रमण्यम आए यहाँ पर एडवाइजर बन करके, जब से उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को एकदम फैंटास्टिकली, उन्होंने जो उनका जो पोटेंशियल होता है, ये दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो मैं तो पढ़ते रहता हूं उसको, और उससे भी अगर आपने देखा ही होगा कि उसमें भी कहीं न कहीं सब्सिडीज के खिलाफ, और सब्सिडीज की बात छोड़ दीजिए, किसानों के ऊपर टैक्स लगाना, वाइडन योर टैक्स बेस, कंपेयर इंडिया विद चाइना का टैक्स बेस कितना बड़ा, अनलेस you enlarge your tax base, you cannot develop your infrastructure। मैं बात समझ में नहीं आता इस बात को, कह रहे थे चाइना में जब टैक्स बेस बढ़ाया गया, किसानों से लिया गया, तो चाइना के किसानों को मजबूत किया गया। हमारे यहाँ के किसानों की क्या, भाई हम भी एक किसान परिवार से आते हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप देखिएगा और बताइएगा। एक जमाने में इन्हीं चीजों के ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स लगे, बात आ जाती है, कई बार इस पर चर्चा, चुके इसका इतना ताकत है किसानों के पास कि लोग हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ वीके.आर.वी. राव को छोड़ करके, वीके.आर.वी. राव दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक और बाद में मंत्री भी बने, एक वीके.आर.वी. राव को छोड़कर मेरे जानकारी में कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट बताइए जो, सब अंदर से बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन सबको लगता है कि नहीं एग्रीकल्चर में होना चाहिए। भाई एग्रीकल्चर की जो व्यवस्था है वो नौकरी की व्यवस्था से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज बेसिकली ए 24 आवर्स एंगेजमेंट। और आप देखिए, आप कंपेयर कीजिए, रवीश कुमार ने किया था पंजाब में, जो जोतदार का जो साइज है, हमारे यहाँ बिहार का, हम लोग भी खेती ठीक ठाक खेती, पर कोई एक दाम सरकार फिजिबल नहीं रह जाएगा, क्योंकि
इस्तेमाल करना है। हम लोग कि हमारा जो फाइनेंस चाहिए, तमाम सारे नहीं तो हाउस ऑफ तो ये पॉइंट दिल्ली में और मुझे Thank you for so much, sir.